Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study issues and welfare programs related to differently abled class. So let's start the lecture. See, you must be enjoying your life, you must be doing whatever you want, you must be playing, singing, dancing, etc. etc. But think about who cannot play a game, who cannot sing, dance, etc. etc. Yes, I am talking about differently abled. Right? The life of differently abled is not enjoyable. Therefore, it is our duty to make them happy. And you are going to become a civil servant. Therefore, you must come to know what are the issues and challenges of differently abled or differently abled class. Now we will study disability or differently abled class. 3-marker question or 5-marker question can be asked. What is disability or what is differently abled class? So you need to write the authentic definition. So we can say a disability. See, a disability is any condition that makes it more difficult for a person to do certain activities or effectively interact with the world around them, either socially or materially. Right? Again, a disability is any condition that makes it more difficult for a person to do certain activities or effectively interact with the world around them, either socially or materially. And these conditions may be cognitive, developmental, intellectual, right, mental, physical, sensory, or a combination of multiple factors. In other words, you can also quote the Right of Persons with Disabilities Act 2016, right? So according to Rights of Persons with Disabilities Act 2016, a person with disability means a person with a long-term physical, mental, intellectual, sensory impairment whose disability would preclude his full and effective participation in society equally with others, right? So these were the two definitions you can write in the examination, right? The disabled persons are also called as handicapped, right? और अर्लियर उनको विकलांग या हैंडीकैप कहकर पुकारा जाता था, परंतु जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दैट हैज गिवन अ न्यू नेम दैट इज दिव्यांगजन, राइट? ये एक रिस्पेक्टेड नेम है, इसीलिए वी शुड कॉल्ड द डिसेबल्ड एज दिव्यांगजन, राइट? तो हम इस लेक्चर में जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको दिव्यांगजन के नाम से ही जो है लिखेंगे. एंड यू ऑल्सो ट्राई टू राइट disabled in the Divyangjan in the place of disabled in men's examination also. Now we will see statistics, right? So differently abled class as per census 2011. So total Divyangjan in India are 2.68 करोड़. So भारत में जो कुल दिव्यांगजन है उनकी संख्या कितनी है? 2.68 करोड़, right? Which is 2.21% of the total population of India, right? And the 2.68 crore, out of them male are 1.5 crore and female are 1.8 crore. Also there is a statistics, 69% is Divyangjan live in rural areas of India, right? Now we will see types of disabilities, राइट? सो डिसेबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं हम इनको समझेंगे, राइट? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज बट वी हैव टू कोट द फैक्चुअल डाटा हियर, राइट? तो शुरुआत में जो राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, शुरुआत में देयर वर 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, राइट, विच वर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. बट द राइट ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट, द राइट ऑफ Persons of Disabilities Act 2016 has increased the type of disabilities from 7 to 21. तो एट प्रेजेंट में जो इंडियन गवर्नमेंट जितनी डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करती है उनकी संख्या कितनी है? 7. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट डाटा,
right? So the Right of Persons with Disabilities Act 2016 has increased the types of disabilities from 7 to 21, right? और इन 21 में से कुछ को हम यहाँ पर देखते हैं, like blindness, hearing loss, low vision, locomotor disability, mental retardedness, right? ऑटिज्म हो जाएगा, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाएगा, राइट? सेरेब्रल पाल्सी, थैलीसीमिया, होमोफिलीज, सिकल डिसीज, एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंसंस डिसीज, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, राइट? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ disabilities in India. Now we will see what are the causes of disabilities, right? It can be asked as a 5-marker question. So what are the causes or reason behind the disability? We will study one by one. The first is congenital disability or genetic cause, right? So maximum cases में जो congenital डिसेबिलिटी है या जेनेटिक कॉजेज देखने को मिलता है. सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर एडवर्स कंडीशंस, राइट? या तो डिसेबिलिटी बाय बर्थ होती है और बाय बर्थ होगी तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या जेनेटिक रीजन होगा, राइट? अदरवाइज दूसरा कारण क्या होगा? एडवर्स कंडीशन. यदि कोई पर्सन किसी भी एडिक्शन में होता है या ही यूजेस कंटामिनेटेड वाटर या उसका जो न्यूट्रिशन है वो इम्प्रॉपर होता है तो उसकी वजह से भी उसको डिसेबिलिटी हो सकती है, राइट? थर्ड रीजन इज मैरिज इन द सेम ब्लड ग्रुप एंड क्लोज रिलेशंस, राइट? अगर सेम ब्लड ग्रुप में या क्लोज रिलेशनशिप में मैरिज होती है तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है. साथ ही साथ वार. अब यहां पर ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आफ्टर बर्थ जो डिसेबिलिटी होती है उसके लिए ये कारण जो है दिस इज मेन रीजन, राइट? आफ्टर बर्थ जो डिसेबिलिटी होती है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका हो जाएगा? वायलेंस का हो जाएगा, राइट? एक्सीडेंट है या वायलेंस है, उसके बाद में वॉर, वायलेंस, राइट? नेचुरल डिजास्टर या टेररिज्म से भी जो है डिसेबिलिटी एक्वायर हो जाती है. साथ ही साथ excess of chemical elements like arsenic or fluoride. So we can say that pollution is also responsible for causing disability in India, right? Now we will see the issues or challenges, right? Issues or challenges of differently abled class. The first is the indifferent attitude of government machinery towards them, right? हमारी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए और जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या दिव्यांगजन हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही अधिक होना चाहिए, परंतु जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनका एटीट्यूड टुवर्ड दिव्यांगजन वो प्रॉपर नहीं होता है जिसकी वजह से उनको कई फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं. सेकेंड हो जाएगा फैमिली एंड सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा, राइट? जो दिव्यांगजन होते हैं उनको फैमिली से या सोसाइटी से ही एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिससे उनकी लाइफ और ज़्यादा वर्स हो जाती है. साथ ही साथ दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अर्थात वो इकोनॉमिक तरीके से भी जो है अपने फैमिली पर जो है डिपेंडेंट होते हैं. देन एजुकेशन, राइट? Education is not inclusive, right? In India there is a education problem. जो हमारा एजुकेशन है वो इंक्लूसिव नहीं है, अर्थात हमारे जो जितने भी स्कूल्स हैं उनमें डिफरेंटली एबल्ड को या दिव्यांगजन को साथ में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाता है. अगर हम फैक्ट देखें तो ओनली 1% दिव्यांगजन रीचेस स्कूल, राइट? सो 1% रीचेस टू स्कूल, बाकी के 99% जो दिव्यांगजन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं हो पाता है, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट इश्यू. देन लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? दिव्यांगजन के लिए एम्प्लॉयमेंट की अधिक अपॉर्चुनिटी नहीं है. इफ अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है तो उनकी जो सैलरी है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, साथ ही साथ उनके साथ में जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट? एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं होंगी सो
जो दिव्यांग जन है दे कैन नॉट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। आल्सो लैक ऑफ सिंपैथी, राइट, इफ देयर इज अ सिंपैथी तो उससे जो दिव्यांग जन है उनके लिए इन्वायरमेंट सहज हो जाएगा या सरल हो जाएगा। परंतु इन आवर सोसाइटी दिव्यांग जन्स आर कॉल्ड बाय देयर डिसेबिलिटी, राइट, जैसे अंधे, बहरा, इन शब्दों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, राइट, और इनसे उनको तकलीफ ही होती है। देयरफॉर देयर इज अ लैक ऑफ सिंपैथी इन सोसाइटी, आल्सो लैक ऑफ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस and counseling centers, right, if they have to get a particular service then उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स होना चाहिए, पुलिस स्टेशन होना चाहिए, कोर्ट्स होना चाहिए, ताकि वो कम से कम समय में ही दे कैन एक्वायर और दे कैन गेट अ गवर्नमेंट सर्विस। देन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, कई दिव्यांगजन को स्पेशल न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, परंतु दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, देयरफॉर उनके जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है वो भी क्या है, एक बिग चैलेंज हो जाएगा। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन इश्यूज हो जाएंगे। यदि डिसेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, अगर जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए भी अगर हेल्प रिक्वायरमेंट है तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है, और इंडिया में उतने अधिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं ही नहीं। साथ ही साथ इफ़ देयर इज़ अ वुमन और डिसेबिलिटीज़ है तो महिलाओं की खुद की समस्याएं हैं, साथ में अगर डिसेबिलिटीज़ भी होगी सो दिस वुड बी अ डुअल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, जो दिव्यांगजन है दे रिक्वायर ह्यूज मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि कई बार तो उनका जो लाइफ होता है वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर या मेडिकल साइंस पर ही डिपेंड होता है, और अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल सर्विसेज ही कम होंगी सो डेफिनेटली उनको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ नो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी तो जो जितनी भी गवर्नमेंट एक्ट्स हैं या जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके माध्यम से जो दिव्यांगजन है दे कैन गेट सर्विसेज, परंतु यदि डेफिनेशन ही क्लियर ही नहीं होगी तो इसमें जो कई प्रकार के लोग हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, राइट। देयरफॉर देयर मस्ट बी अ एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, सो राइट, और अगर उसकी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो उनको जो है डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दे कैन गेट मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट। देयर इज फुल बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, राइट। तो जो गवर्नमेंट स्कीम है उनका भी करप्शन की वजह से और भी जो पेपर वर्क होता है उसकी वजह से भी उनको बहुत जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही साथ देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट, और लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा तो उनके लिए भी अच्छी पॉलिसीज हैं वो भी नहीं बन पाएंगी, राइट। नाउ वी विल सी द वेलफेयर प्रोग्राम्स, सो द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड क्लास, राइट, और जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं हम उनको कई भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। If 11 marker question is asked in the examination, then definitely the welfare programs should be divided in these topics or in these headings. So the welfare programs or welfare provisions can be divided as constitutional provisions, statutory provisions, right, policy provisions and other provisions. So through these provisions we will see the welfare programs of differently abled class. The first is constitutional provisions, right, article 21. See, there are many provisions in article 21, but जो आर्टिकल 21 है उनके कई प्रोविजंस में से देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड, राइट, विच इज फॉर ऑल, राइट। तो हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए देयर इज अ राइट टू लाइफ, और उसमें डिफरेंटली एबल्ड भी आते हैं, राइट। देयरफॉर देयर इज अ प्रोविजन in article 21 and that is provision of education, health and food. Also
Article 41. According to Article 41, state shall provide education, work and public assistance. Article 29 provides social justice. And Article 46 which is related to upliftment of weaker sections. So ये जो जितने भी आर्टिकल हैं they are directly or indirectly related with the welfare provisions of Divyangjans, right? Next is statutory provisions and this is the most important, right? जो जितनी भी सेक्शन है, right? तो यहाँ से जो जितने भी गवर्नमेंट एक्ट हैं वहाँ से सीधा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट? सो वी विल सी व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग दिव्यांगजन. फर्स्ट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, राइट? सो दिव्यांगजन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 जो है वो हमारे देश में लागू किया गया था. और इसका सबसे बड़ा या जो मेन प्रोविजन क्या है, देयर इज अ 3% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इंस्टीट्यूशन. तो गवर्नमेंट जॉब्स और इंस्टीट्यूशन में 3% जो है रिजर्वेशन डिफरेंटली एबल्ड के लिए होगा ताकि वो एक अच्छी जॉब को पा सकें और अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें. आल्सो देयर वाज द प्रोविजन रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, बिजनेस, राइट, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग. तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो दिव्यांगजन हैं उनके एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और ट्रेनिंग के लिए भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी. साथ ही साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और जॉब्स हैं उनमें 3% जो है रिजर्वेशन था, राइट? और काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी कि इस रिजर्वेशन को इंक्रीज किया जाना चाहिए और जो कि किया भी गया, राइट? तो अब दूसरा जो है एक्ट हम समझते हैं यहाँ पर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, राइट? सो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इसका सबसे पहला प्रोविजन क्या हो जाएगा, इसमें मीन्स द डिसेबिलिटीज वाज डिफाइंड बाय दिस एक्ट. सेकेंड क्या हो जाएगा कि इस एक्ट के माध्यम से जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज थे दैट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 21. साथ ही साथ इसमें कुछ और अदर टाइप्स की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया है. तो 7 से बढ़ाकर डिसेबिलिटीज़ को 21 कर दिया गया. साथ ही साथ जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, पार्किंसन डिसीजेज हैं, हीमोफीलिया हो जाएगा, थैलीसीमिया हो जाएगा, राइट, इनको भी जो है डिसेबिलिटी की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है. साथ ही साथ जो 3% रिजर्वेशन विच वाज इन जॉब्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 4%. नाउ देयर वुड बी 4% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. Also there would be a establishment of special courts for speedy justice. तो जो दिव्यांगजन हैं वो इन स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से जो है स्पीडी जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ फैसिलिटी ताकि उनको जो है पब्लिक प्लेसेस को या पब्लिक बिल्डिंग्स को या हॉस्पिटल्स को या जो ट्रांसपोर्ट है उनको वो आसानी से एक्सेस कर पाएँ, राइट? सो गवर्नमेंट विल मेक प्रोविजंस और गवर्नमेंट विल मेक favorable facilities for the access to public places, building, hospitals and transport. और इसके लिए गवर्नमेंट, अगर आपने देखा होगा तो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं या पब्लिक बिल्डिंग होती हैं वहाँ पर व्हील चेयर के लिए क्या होता है, एक सीधा, जैसे नॉर्मली क्या होती हैं सीढ़ियाँ होती हैं, परंतु जो दिव्यांगजन है उनके लिए व्हील चेयर के लिए सीधा जो है बनाए जाते हैं, राइट? और जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनमें काफ़ी स्पेस भी होता है, लिफ्ट की व्यवस्था की जाती है ताकि, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट है उनमें भी उनके लिए जो है सीट्स अवेलेबल होती हैं. ये प्रोविज़न था. और क्या हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल और स्टेट कमीशंस फॉर द डिसेबल्ड. और जो नेशनल है और वो स्टेट कमीशन है वो इन दिव्यांगजन की वेलफेयर के लिए काम करेंगे.
नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006, और ये इस पॉलिसी में दिस वाज द नेशनल पॉलिसी, तो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006, राइट। इस पॉलिसी में दिव्यांगजन के फिजिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिलेटेड जो है कई प्रोविजंस को इसमें इंक्लूड किया गया था। साथ ही साथ इस पॉलिसी में रिहेबिलिटेशन की भी चर्चा की गई थी। तो जो जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो पाए, इसके लिए नेशनल पॉलिसी फॉर प्रोविजंस विद डिसेबिलिटी 2006 में प्रोविजन थे। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको इंडियन रिहेबिलिटेशन एक्ट 1992 के अंतर्गत जो है फॉर्म किया गया था। सो अंडर इंडियन रिहेबिलिटेशन एक्ट 1992 रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, और यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रेनिंग टू द हैंडीकैप्ड और ट्रेनिंग टू दिव्यांगजन्स, उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर पाए। साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग फॉर द दिव्यांगजन्स, तो जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये उनकी रिक्वायरमेंट के लिए या उनके लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए जो है पॉलिसीज बनाने के लिए भी कार्य करती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर नेशनल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत जो रिहेबिलिटेशन एडवाइस है और रिहेबिलिटेशन जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, right? So these were the statutory provisions regarding the Divyangjans in India, right? Now we will study policy initiatives regarding the welfare of दिव्यांगजन इन इंडिया। उसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा? नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो जो नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये जो है रिटेल लोन जो है अवेलेबल कराती है। तो दिव्यांगजन को नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स लोन फॉर रिटेल बिजनेस। साथ ही साथ दिव्यांगजन को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी जो है प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा असिस्टेंस, राइट? असिस्टेंस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड असिस्टेंस फॉर परचेज एंड फिटिंग ऑफ इक्विपमेंट। तो जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए जो भी मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिस भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी फिटिंग के लिए भी जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर असेसिबल इंडिया कैंपेन, और असेसिबल इंडिया जो कैंपेन है वो दिव्यांगजन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट? इस असेसिबल इंडिया कैंपेन के माध्यम से एक असेसिबल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट किया जाएगा ताकि पब्लिक बिल्डिंग में, ट्रांसपोर्ट में उनको कोई भी समस्या ना जाए। साथ ही साथ दिव्यांगजन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और उनके लिए इंक्लूसिव जो है सोसाइटी अवेलेबल हो सके। साथ ही साथ enhancing access to environment, transport and information and communication, इस तरीके की फैसिलिटी और फेवरेबल जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराना ताकि ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन वो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। और क्या हो जाएगा? स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? स्कीम हो जाएगा। इसके अलावा दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर रिहेबिलिटेशन स्कीम 2003 और नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, राइट? तो ये क्या हो जाएंगे? पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1992 हो जाएगा, और इसके माध्यम से भी जो दिव्यांगजन है उनको मेंटल हेल्थ जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। देन डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये जो डिस्ट्रिक्ट disability rehabilitation center हैं, these are established by central government and run by central government with the help of states, or these district disability rehabilitation center provide medical equipment, right, and medical training or
दिव्यांगजन को जो है ट्रेनिंग इसके ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नाउ वी विल सी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ दिव्यांगजन और डिफरेंटली एबल्ड क्लास। तो उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंटली एबल्ड क्लास एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। वो जिस भी एजुकेशन मतलब अगर पीजी डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, या वो जिस भी लेवल पर है उस लेवल पर अलग अलग जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग व्हीकल्स फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है दिव्यांगजन को व्हीकल्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, दीनदयाल समर्थ योजना, राइट, एंड दिस योजना हैज़ बीन इनेक्टेड इन 2004। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, कनेक्ट विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो जो दीनदयाल समर्थ योजना है वो दिव्यांगजन को जो है समर्थ बनाती है ताकि जो दिव्यांगजन है दे कुड कनेक्ट विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एजुकेशन प्रमोशन स्कीम। सो थ्रू दिस प्रमोशन स्कीम यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए फ्री जो है एजुकेशन, राइट, प्रोवाइड कराने की जो यहाँ पर कोशिश की जाती है ताकि उनकी एक अच्छी सी लाइफ हो सकते, राइट। सो थ्रू दिस स्कीम एजुकेशन इज प्रोवाइडेड। आल्सो 12th पास होने पर लैपटॉप भी जो है प्रोवाइड कराया जाता है और ट्राइसाइकिल भी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो चीफ मिनिस्टर एजुकेशन प्रमोशन स्कीम्स के माध्यम से जो दिव्यांगजन है दे आर प्रोवाइडेड व्हीकल्स, दैट इज ट्राइसाइकिल। आल्सो उनको 10th पास होने पर लैपटॉप प्रोवाइड कराया जाता है और उनके एजुकेशन जो है फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन स्कीम 2022, right? So this is a pension scheme, right? So under the Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme 2020, Madhya Pradesh government is providing Rs 500 rupees per month pensions for दिव्यांगजन, ताकि वो इस पेंशन की मदद से जो है अपने लिए कुछ फैसिलिटीज़ को एक्वायर कर सकें। एंड नेक्स्ट इज डिसेबल्ड जल कल्याण योजना। सो दीज आर द policies which are being enacted by Madhya Pradesh government. Now we will see other welfare programs regarding the differently abled class, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, राइट। किरण इज अ हेल्पलाइन सेंटर, राइट। सो किरण इज मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर, राइट। तो अगर दिव्यांगजनों को मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी फैसिलिटी एक्वायर करनी है, सो उनके लिए किरण जो है हेल्पफुल होगा। सो किरण इज मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मनोदर्पण बुक, राइट। सो मनोदर्पण जो बुक है वो जो दिव्यांगजन है, राइट, दिव्यांगजन को अवेयर करने के लिए, राइट, उनके मोरल को बढ़ाने के लिए मनोदर्पण बुक इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। और इंडिया इज मूविंग टुवर्ड अचीविंग SDG गोल्स, और यदि SDG गोल्स हम अचीव कर लेते हैं तो उससे भी दिव्यांगजन का वेलफेयर होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू मीडिया, राइट। और अगर मीडिया के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड होगी सो उससे सोसाइटी में सिंपैथी होगी, और सिंपैथी होगी सो जहाँ कहीं पर भी कोई भी दिव्यांगजन मिलेगा सो एवरी पीपल, और हर एक व्यक्ति उस दिव्यांगजन की मदद कर देगा। आल्सो मैनी NGOs आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिव्यांगजन, जिसमें से पहला हो जाएगा नारायण सेवा संस्थान एंड नेक्स्ट हो जाएगा पैट यूनिटी इंडिया, राइट। सो वी हैव फिनिश्ड द इश्यूज एंड welfare programs related to differently abled class or दिव्यांगजन. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.